So, good morning to the participants. Good morning, Pramodit, and thank you for accepting the invitation and coming for the session, taking out time. Good morning, So, Rahul. participants, here today's session is by Pramodit Somvanshi. He is co-founder and CEO for Ingenium Technologies. It is one of the edtech startup we can say started by him. Is IIT Roorkee alumni and one of the great being startup you can say. So you can discuss a lot of things and you can learn a lot of things. So now I hand over it to you, Pramodit, for further. Our participants, as you must be aware of, are we are running our total women entrepreneurship acceleration program. They are mainly from four sectors. EdTech is one of them, and then they are from big data SaaS, medical technology also, and few of them are from consumer retail. Okay, So okay, okay. total four sectoral, we are running a women entrepreneurship acceleration program. The thing is, all of them are women entrepreneurs at early stage startup, or few of them even at idea stage also. Mm-hmm. Okay, okay, So, yes. okay, So now sure. that's all yours. Okay, okay. Thank you, Rahul. Thank you for inviting me. To discuss about whatever my learning has been in the tech space, because I've been working in the tech space for 4 Yes. years now. Uh, Launched a lot of products, failed at a lot of them. Currently, we are launching some another products. So basically, the topic for today's discussion is how to be a successful in tech startup. Okay, and that is a very very subjective and very vast topic. Okay, I don't think I will be able to cover most of it, but yeah. So what I'll try to I'll try to summarize whatever I think are the most important aspect when you think about an tech startup is, and then we can take questions answer, and that would be more relevant and more more helpful for the whatever participants that we have today, because not every problem has a single solution. So I would like to discuss about the specific issues anyone is facing in their tech journey and everyone. So before let me share my screen. Okay, I will. mm, yeah, is my screen visible to everybody? Yes, it is Yes. visible. Okay, so guys, uh, so basically क्या होता है कि हम लोगों ने we have seen a lot of tech startup till now. Okay, so but the basic concept that is remaining that remains the same. So जब भी आप whenever you start your tech startup, the first thing that you should understand is who are we. So who are we से मतलब है there are a lot of other portions of the stakeholder in an tech startup. So first you should understand is uh, there is a concept called distributor concept. Okay, तो basically आपने को ये समझना पड़ेगा कि हम जो एडटेक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या वॉट एवर स्टार्टअप दैट वी आर स्टार्टिंग, हु आर वी इन इट. इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप आपने देखे होंगे, एडटेक भी होंगे और नॉन एडटेक, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ उबर. ओके, उबर उबर क्या करता है कि उबर बहुत सारे ड्राइवर से गाड़ी लेता है एंड उनका एक प्लेटफॉर्म है जिस जिन वो गाड़ियों को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने कंज्यूमर में. उबर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रीब्यूटर. फॉर एग्जांपल जोमेटो. जोमेटो जोमेटो क्या करता है कि अलग अलग रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप किया, रेस्टोरेंट्स खाना बनाते हैं, जोमेटो इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्ट्रीब्यूट देयर फूड टू कंज्यूमर. जोमेटो इज अ डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, सो ऐसे ही जब हम लोग एडटेक में आते हैं, एडटेक में तीन चार टाइप के लोग होते हैं.
फर्स्ट जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ओके। सेकंड ऐसे लोग होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ओके। कंटेंट क्रिएटर कौन होते हैं? ऑथर्स, ओके। हम एडटेक में पिछले जितने भी सालों से एडटेक इंडस्ट्री खड़ी है, ऑथर्स आर द वन जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल जैसे आर.डी. शर्मा, जिन्होंने मैथ्स का कंटेंट किया, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं साइंस से, ठीक है। दीज आर व्हाट वी कॉल कंटेंट क्रिएटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं एडटेक में? पब्लिशर्स, ओके। जितने भी आप पब्लिशर्स देखेंगे वो खुद का कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो ऑथर से कंटेंट लेते हैं और अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एक और जो मेजर स्टेक होल्डर होता है, स्कूल, ओके। स्कूल्स, ठीक है। कि बेसिकली क्या होता है, ऑथर्स कंटेंट क्रिएट करता है, पब्लिशर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस होता है स्कूल्स के थ्रू, ठीक है। सो दीज थ्री आर द मेन पिलर्स ऑफ एन एनी एडटेक सिस्टम इन द होल वर्ल्ड, ओके। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सो बेसिकली अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब भी हम कोई एडटेक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, हु आर वी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट एडटेक स्टार्टअप राइट नाउ इन द कंट्री, अनअकैडमी। अनअकैडमी का डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग क्या करते हैं, टीचर्स हायर करते हैं, उनके कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू अ लार्ज स्केल ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टार्टअप लेते हैं हम लोग, जैसे अनअकैडमी हम लोगों ने लिया, अनअकैडमी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। दूसरा एक स्टार्टअप लेते हैं हम लोग, बायजूस, बहुत फेमस चल रहा है अभी, सारा बहुत कंट्रोवर्सी में रहा। बायजूस इज अ कंटेंट क्रिएटर बोथ एंड डिस्ट्रीब्यूटर बोथ, ओके। बायजूस क्या करता है, वो अपना कंटेंट भी बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं वो। सो इज एनी वे कंटेंट क्रिएटर इज अ गुड थिंग, इट्स गुड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, बट पूरे स्टार्टअप स्पेस में, पूरे एडटेक स्पेस में, इफ यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, you are going to have a much larger chance of success rather than content creators. ऑथर से ज्यादा पैसा कौन कमाता है? पब्लिशर्स। ऑथर से ज्यादा रीच किसकी होती है? पब्लिशर्स की, ओके। अनअकैडमी बहुत सारे टीचर्स को हायर करता है, उनका कंटेंट इज द किंग, बट who is a bigger player in this whole distribution system is the Unacademy, because it distributes the content to much larger consumer and students. So this is why we need to understand whenever we are starting a startup or anything, first of all हम लोग को सोचना पड़ेगा कि what we want to become. स्कूल के अलावा स्कूल को हम लोग कैसे कर सकते हैं? We can call it as a रियल एस्टेट, जहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है, स्कूल, कोचिंग, वट एवर यू कैन कॉल इट। तो बेसिकली ये तीन एस्पेक्ट हम लोग को समझने पड़ेंगे कि इफ अगर हम लोग कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूटर, वी कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर, वी कैन बी रियल एस्टेट वेयर दिस कंटेंट डिलीवरी इज हैपनिंग, ओके। तो यही तीन स्टेक होल्डर होते हैं। सो जब भी आप एडटेक स्टार्टअप स्टार्ट करें, you need to focus on one thing. You cannot be a content creator and distributor. Byju's has become, because it has raised infinite amount of money, it has, but it's very hard for a one player to be a content creator and distributor both. So you have to choose what you need to become. So for example, there's a one startup that I really like, very much like, जिसके थ्रू मेरी स्टार्टअप जर्नी शुरू हुई थी इन 2016. I did an internship there, Open Door Education. Open Door. Has anyone heard of Open Door Education? किसी ने सुना ओपन डोर एजुकेशन के बारे में? नो ना, नहीं सुना होगा किसी ने, बिकॉज बहुत छोटा स्टार्टअप है, दे आर बूट स्ट्रैपिंग एंड एवरीथिंग, बट वो लोग दे आर द कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनसे अच्छा कंटेंट मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, बट because they are not able to distribute their content in a much bigger way, that is why they are not big. So basically आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, आपका एम क्या है through that starter, and that is how you can choose what you want to become, okay. So इस तरीके से तो बेसिकली तीन ही स्टेक होल्डर में स्टार्टअप्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रियल एस्टेट. सो वी नीड टू चूज कि हम लोगों को क्या चीज स्टार्ट करनी है. सो दिस इज what I've understood till now in the whole distributor. What I've learned personally is,
you have to be a distributor to become really big in any industry, in any startup industry. Okay, so what we are doing right now currently, हम लोग क्या कर रहे हैं इंजीनियर में, हम लोगों ने आर.डी. शर्मा सर के साथ पार्टनरशिप किया है. हम लोग उनके कंटेंट को डिजिटाइज वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके, so in a way कि हम लोग उनका जो भी मैथ्स का कंटेंट है उसका हम लोग digitized hybrid version बनाएंगे and we distribute to the much larger base of the students. So in a way we are going to become the distributor of their content, and that is why that is opening a very good route for us. So this is the first concept that I think everyone should understand before starting their own startup. Second thing is जो जब आप डिसाइड कर लेते हो कि यार मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, कुछ भी बनना है, द सेकंड थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड इज बिजनेस मॉडल. ओके, कि तो बिजनेस मॉडल्स क्या होता है, 3 टाइप के बिजनेस मॉडल काम होते हैं. एक होता है B2B, अगर आप कोई एक होता है B2C और एक होता है B2B2C. ठीक है, इस इंडस्ट्री में 3 टाइप के मॉडल होते हैं. B2B होता है कि अगर आप किसी बिजनेस मतलब किसी स्कूल, किसी एडटेक कंपनी के साथ या कुछ के साथ स्टार्टअप करते हैं. B2C होता है अगर आप डायरेक्ट बच्चों को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं. और B2B2C होता है कि आप किसी बिजनेस या स्कूल्स के थ्रू स्टार्टअप आप करते हैं. बिजनेस या स्कूल्स के थ्रू आप कंज्यूमर्स को हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं. ये टर्मिनोलॉजी सबको समझ में आती है, B2B, B2C, B2B2C, एवरीवन अंडरस्टैंड दैट? तो ठीक है, तो हम लोग ठीक है, तो बेसिकली अपने को समझना है कि सबसे पहले B2B क्या होता है. किसी भी एडटेक इंडस्ट्री में जब आप B2B करने जाते हैं तो आपको 2 ही 3 टाइप के बिजनेस मिलेंगे. आपको मिलेगा स्कूल्स या कोचिंग. ओके, आपको मिलेगी एडटेक कंपनीज, और आपको मिलेगा कुछ पब्लिशर्स मिल सकते हैं या जो कंटेंट क्रिएटर्स बनाते हैं. ठीक है, और चौथा होगा आपका ऑथर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स एंड एवरीवन. तो बेसिकली यही 4 टाइप की बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं एडटेक स्टार्टअप में, एडटेक पूरे मार्केट में. B2B एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल रहता है, बिकॉज आप इन चारों के पास जाएंगे, यही 4 के साथ आप बिजनेस कर सकते हो अगर आप B2B बिजनेस कर रहे हो, एंड इट्स वेरी हार्ड टू डू बिजनेस विद देम. एडटेक की हिस्ट्री में सिर्फ एक कंपनी ऐसी रही है, एडुकॉम, जिसने सबने जब छोटे होंगे तो सबने ना आपने अपने स्कूल में स्मार्ट क्लासेस देखा होगा, अगर किसी को याद हो तो 2007, 2008, 2009 की बात है कि एवरी स्कूल हैड स्मार्ट क्लासेस. सो एडुकॉम वाज द कंपनी जो सारे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस लेके आई थी. ओके, दैट इज द ओनली कंपनी जो B2B जो एक सक्सेस हो पाई थी फॉर वन एक्सटेंट, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू डू बिजनेस विद स्कूल्स. बिकॉज क्या होता है, उनके अंदर इतना ज्यादा प्रोसेस होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं. इट्स वेरी हार्ड फॉर अ कंपनी टू डू बिजनेस विद स्कूल्स. आप 10 स्कूल, 20 स्कूल, 30 स्कूल के साथ कर लोगे, बट आपको अगर 10,000, 20,000 स्कूल्स के साथ बिजनेस करना है, इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी कंपनी टू डू दैट. राइट नाउ इंडिया में ऐसी कोई कंपनी सक्सेसफुली काम नहीं कर रही है जो एक साथ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10,000, 20,000, 30,000 स्कूल्स में काम करती हो. नेक्स्ट एजुकेशन या कुछ एक आध छोड़ के कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जो मच लार्जर स्केल में स्कूल्स के साथ काम कर रही हो. सबके पास 500, 600, 1000 स्कूल्स हैं, बट not any single company has 1,000 or 10,000 or 20,000 number of schools. उसका सिंपल से रीजन ये होता है कि स्कूल्स में ना डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा होती है. डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फिर उसमें कौन पे करेगा, जो बैरियर स्कूल में एंट्री का ये होता है कि इतना डेमोक्रेसी हो जाती है, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू अ बिजनेस विद देम. एडटेक कंपनीज होती हैं, you can do partnership with edtech companies, but it's very hard क्योंकि edtech में क्या होता है, it's very easy to
कॉपी समथिंग और आप कुछ कर सकते हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू डू बिजनेस विद एडटेक कंपनीज. पब्लिशर्स आते हैं. पब्लिशर्स आर अ वेरी ओल्ड टाइम प्लेयर. They are very afraid of new age startups taking their place and everything. So it's very hard to do business with publishers and authors too, because उनका 20 साल 30 साल पुराना पूरा बिजनेस सेट है. They don't understand the technology, और they are not उनको अपने कंटेंट का कॉपीराइट की ज्यादा टेंशन होती है rather than innovation and everything. So B2B मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो एडटेक में देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बट नन ऑफ इट हैज वर्कड टिल नाउ. ओके. क्योंकि क्या होता है कि आप करते हो स्कूल्स या कोचिंग में, इसमें जो सबसे अभी तक अगर किसी ने थोड़ी भी सक्सेस पाई है वो स्कूल और कोचिंग के थ्रू ही पाई है. हम लोग का भी जो स्टार्टअप है, व्हाट वी डू इज एट इंजीनियर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल्स को एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं, डिजिटाइजेशन करते हैं, एंड इट्स वेरी हार्ड टू स्केल. हमारे मार्केट, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन आवर मार्केट, एंड इट्स स्टिल वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्केल. हमारे पास आज के टाइम पे 10,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल्स मिला के हैं, एंड but still it's very hard for them to pay us, and it's very hard for us to make a profitable model out of that. So that is what I'm saying कि इस पूरे B2B मॉडल में इंडिया में अभी तक एडटेक में कोई भी अपना क्या बोलते हैं B2B मॉडल पे कोई सक्सेसफुल कंपनी नहीं हो पाई है. सिर्फ एक कंपनी थी एडुकॉम, जिसका फॉल का रीजन यही था कि स्कूल से उनको पे करना बंद कर दिया था, एंड दे उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स खरीद दिए थे, एंड स्कूल डिडंट पे टू them, and they fell. So this is one model. Second model that we need to talk about is a B2C model. Okay, B2C model होता है business to consumer. Byju's, Unacademy, a lot of good edtech startup are doing B2C model कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है. ओके. अब इसके चैलेंजेस क्या होते हैं? इसकी अच्छी बात ये होती है कि आपके पास मार्केट बहुत बड़ा होता है. स्कूल्स का मार्केट बहुत छोटा होता है. 1.5 लाख 2 लाख स्कूल्स हैं इंडिया में, लेकिन आप बच्चे जाएंगे तो 16 करोड़ है. ओके, जो एडटेक स्टार्टअप में पढ़ते हैं, K12 में पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं. सो B2C मार्केट इज अ बिगर मार्केट देन B2B फॉर एनी एडटेक कंपनी इन दिस होल इंडिया. बट इसमें अब चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है कि हाई कैक समझते हैं सब लोग? कैक मतलब कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स. ओके, कस्टमर्स एक्विजिशन कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कैक. कि अगर एक बच्चे को आपको अपना प्रोडक्ट देना है तो मार्केटिंग के थ्रू, सेल्स पर्सन के थ्रू आप उस पर कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं. इसका मैं एग्जांपल देता हूँ. आज से 2 साल 3 साल पहले बायजूस का एक प्रोडक्ट बिकता था 55,000 का, 9th या 8th क्लास का. they were spending almost 1 lakh for the sale of one tab. ओके, मतलब कि वो बेचते थे 55,000 का प्रोडक्ट, लेकिन उस पर खर्चा जाता था उनका ऑलमोस्ट 1 लाख. So this is what we call that 1 lakh is what we call the CAC. कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए. ओके. सो B2C का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि कैक बहुत हाई होती है. जितनी भी कंपनीज है, अनअकैडमीज, बायजूस, दे आर नॉट डूइंग प्रॉफिट्स और दे आर नॉट प्रॉफिटेबल बिकॉज जितने का उनका प्रोडक्ट है उससे ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं. तो अब ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडटेक में ना स्टेक होल्डर्स बहुत होता है. स्टेक होल्डर्स मतलब कि डिसीजन मेकर्स. जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे आज के टाइम पे अगर कोई एक बच्चा है, मतलब कोई बच्चा मान लो 11th क्लास में पढ़ रहा है, उसे अगर जोमेटो पे अगर खाना मंगाना होगा, उसके पास ऐप होगी, वो अपना उसके पास पैसा होगा, वो अपना जोमेटो पे खाना मंगाएगा, खा लेगा चुपचाप से. उसको पता है कि भाई मुझे क्या खाना है, कहाँ से ऑर्डर करना, सब कुछ ठीक है. उसमें सिंगल स्टेक होल्डर काम करता है. ओके, सिंगल स्टेक होल्डर काम करता है उसमें. बट जब हम लोग एडटेक में आते हैं तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो स्टूडेंट होता है जो ये कंज्यूम करता है, पैसा देता है पेरेंट्स. ठीक है, सबकी फीस, कोई भी एडटेक आप चाहे बुक भी खरीदो
उसका जो फीस होता है वो पेरेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। थर्ड होता है टीचर, आपको कौन सी बुक खरीदनी है, आपको कहाँ से कोर्स लेना चाहिए, देयर इज ऑलवेज अ टीचर। टीचर में तो कोई बड़ा भाई होता है कि यार वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये वाला फिजिक्स वाला का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, अन अकेडमी से ये वाला यूज कर लो या कुछ ऐसा यूज कर लो, ठीक है। अ, फिर अपना आता है करिकुलम, ठीक है, करिकुलम या स्कूल, ठीक है, कि आप वही प्रोडक्ट खरीदोगे जो आपकी स्कूल्स में चल रहा होगा, जिसका करिकुलम कोई ऐसा है, अगर कोई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है तो वो आईसीएसई बोर्ड का प्रोडक्ट नहीं खरीद लेगा। सो क्या होता है, जब हम लोग एडटेक की बात करते हैं, जब बी टू सी में आते हैं, तो आप कंज्यूम करता है बच्चा, बच्चे का कंज्यूमर, ठीक है, पेमेंट करता है पेरेंट्स, उसको इन्फ्लुएंस करता है टीचर। सो जब हम एडटेक में आते हैं तो हम लोग एक आदमी की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, जब डायरेक्ट डायरेक्ट बी टू सी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बायजूस की जो भी आपने स्टोरीज पढ़ते हैं, अगर कभी पढ़ी होंगी, तो वो लोग पेरेंट्स को बेचने जाते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं कि यार आपके बच्चा इस मैथ सब्जेक्ट में कमजोर है, इसको ये वाला कोर्स कराओ तो वो चलेगा। फिर वो बच्चा देखता है, बच्चा पढ़ता है, बच्चा डिसाइड करता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो देर बिकॉज सिंपली क्या होता है, आप किसी भी रैंडम स्टार्टअप में जाएंगे, किसी भी डायरेक्ट बी टू सी स्टार्टअप में जाएंगे, फॉर लाइक जोमेटो, पेटीएम और वॉट एवर इट इज, हम लोग एक ही बंदा कंज्यूम भी कर रहा है और वही डिसीजन भी ले रहा है, वही पेमेंट भी कर रहा है। बट जैसे ही आप एडटेक में जाते हैं, देर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड एवरीवन। सो दैट इज व्हाई टू बिल्ड अ बी टू सी स्टार्टअप हैज बिकम वेरी कॉस्टली इन इंडिया, कैक। बिकॉज क्या होता है कि अब आपको एक बंदे के लिए मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको 3 से 4 बंदों के लिए मार्केटिंग करनी है। तो जो कॉस्ट आपका 10,000 आ रहा था, वो डायरेक्टली आपका 4 टाइम्स हो गया। ओके, सो दैट इज व्हाई a lot of big edtech startups in India are क्या कर रहे हैं कि वो लोग, उनकी कैक बहुत ज्यादा होने के कारण वो दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रॉफिटेबल हैं भी, अ, वो किस मार्केट में है, हायर एजुकेशन मार्केट में, हायर स्किल। आप अगर स्टडी करेंगे कि इंडिया में जो बी टू सी स्टार्टअप जो अच्छा कर रहा है, इट इज अपवर्क, अपग्रेड। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिग्री, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं, उनको जॉब के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो जब कोई बच्चा कॉलेज चला जाता है तो उसके सारे डिसीजंस की जिम्मेदारी उसकी रहती है कि वो जॉब करना चाह रहा है तो अब उसे कोडिंग सीखनी है या डिजाइनिंग सीखनी है, वो पेमेंट भी वही करता है, सारा करता है। तो दैट इज वाई जो भी एटेक में जो कंपनीज थोड़ा हायर एजुकेशन में काम कर रही हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू बी मोर प्रॉफिटेबल देन जो कंपनी हमारे K-12 और प्रिपरेशन में काम कर रही है उनसे। So that is why whenever you are starting, it's very important to understand आप किस मार्केट में स्टार्ट कर रहे हो, आप K-12 में स्टार्ट कर रहे हो या कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव में स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप हायर एजुकेशन में स्टार्ट कर रहे हो। बिकॉज सबके स्टेक होल्डर अलग अलग होते हैं, सबका कैक अलग अलग आएगा। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका मतलब किस आप एरिया में स्टार्ट कर रहे हो, आपका कैक किस तरीके से आएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द बी टू सी। तो अभी तक हम लोगों ने बी टू बी मॉडल समझा कि इट्स वेरी हार्ड टू डू स्केल अप बी टू बी स्टार्टअप्स इन इंडिया, बिकॉज टाइम टेकिंग ज्यादा होता है, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा होती है। बी टू सी में जो चैलेंजेस होते हैं, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है। सो इफ एनीवन इज डूइंग स्टार्टअप एंड हैज फाउंड अ वे कि यार मेरा प्रोडक्ट अगर मैं 100 रुपए का बेच रहा हूँ और मेरा कैक सिर्फ 10 रुपए आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी अनबीटेबल। मतलब अगर कोई इंडिया में ऐसा स्टार्टअप बी टू सी अटैक खड़ा करने की कोशिश करता है कि उसकी कॉस्ट का 10 से 20% ही उसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी बिग स्टार्टअप इन इंडिया। थर्ड मॉडल जो आता है, जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, दैट इज B2B2C। मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। So just imagine a scenario. Okay, this is the most successful. Sorry, this is the most successful model in edtech in India. सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। पब्लिशर्स होता है, ओके, उनकी बुक्स होती हैं। वो लोग क्या करते हैं,
स्कूल से पार्टनरशिप करते हैं, उनको बोलते हैं यार कि मेरी 700 रुपए की बुक है, आप उसमें से 200 रुपए आप रखो और 500 और 500 रुपए मुझे दे दो, और बच्चे को आप वो कर लो, किताब लिखवा दो। ठीक है, जस्ट सेकंड। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा 700 रुपए देता है, ये 200 रुपए रख लेते हैं और 500 रुपए इसको दे देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ B2B2C मॉडल, कि आप डायरेक्ट बच्चे के पास नहीं जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक किसी बिजनेस के थ्रू जा रहे हो जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, और वो अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करके कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कराता है और आप उसमें कट लेते हो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ B2B2C मॉडल। आप जितनी भी किताबें होती हैं, आप देखोगे कि स्कूल्स की सेट किताबें होती हैं कि यार मैथ्स के लिए यही चलेगी, साइंस के लिए यही चलेगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ B2B2C मॉडल। देयर आर कंपनीज, वो क्या कर रही हैं, एक कंपनी है, कुछ क्या करती हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस कराती हैं बच्चों के। ओके, तो वो लोग क्या करती हैं, देर आल्सो पार्टनरिंग विद स्कूल्स, कि आप मुझे बच्चों का हमारे बच्चों को आप ये बोलो कि गो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एंड दे आर गिविंग द कट टू देम, कि यार आप जो कोई भी एक बच्चा आपसे एडमिशन लेता है, सो आपको हम कट देंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ B2B2C मॉडल। इसमें सबसे अच्छा अब तो क्वेश्चन आता है कि ये सक्सेसफुल मॉडल बना कैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे अगर मैं एक स्टार्टअप हूँ, मुझे 5,000 बच्चे चाहिए, ठीक है, और मैं अगर डायरेक्ट B2C जाता हूँ, एक बच्चे का कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, तो मेरा 5 लाख रुपए सिर्फ 5,000 बच्चों तक पहुंचने में लगेगा। रादर देन गोइंग टू 5,000 स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं 5 लाख खर्च करने की जगह मैं 50,000 रुपए खर्च करूंगा और एक स्कूल के पास पहुंच जाऊंगा, उसको मैं कुछ प्रोडक्ट दूंगा जिसके थ्रू मेरे पास 5,000 बच्चे ऑलरेडी आ जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी टू गेट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स through any business like a school or coaching or any edtech company, uh, rather than getting the students directly। हम लोग इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, करेंटली हम लोगों ने जब प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, हम लोग इट हैज बीन 3 इयर्स, हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग स्कूल्स को मोबाइल सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। आज के टाइम पे हमारे पास 10,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, 10,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास बच्चे हैं 6 लाख। तो इस 6 लाख बच्चों को एक्वायर करने में हम लोगों को 5 साल टाइम लग जाता है, इतना पैसा लग जाता है कि शायद वी वुड नॉट डू इट, बट क्योंकि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, आज हमारे पास 6 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अपने सिंगल क्लिक में प्रोवाइड करा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ B2B मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हाइब्रिड बुक। ओके, आई विल शो यू गाइस हाउ इट लुक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10th क्लास के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक इंटरैक्टिव बुक बनाई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास 6 लाख बच्चे हैं ऑलरेडी थ्रू ऑल दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोल रहे हैं कि आप वो प्रोडक्ट अपने बच्चों को कंज्यूम कराइए। ठीक है, तो हमारा मॉडल कैसा हो गया कि एक इंजीनियर ने एक प्रोडक्ट बनाया, उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने बच्चों को दिया। ठीक है, हमारा 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, बच्चा 2,000 रुपए पे कर रहा है, हम उसमें से 400 रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं और 1,600 रुपए खुद रख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ B2B2C मॉडल। ओके, कि अगर हम इसी प्रोडक्ट को अगर डायरेक्ट बच्चों को बेचते, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है वो मिनिमम 3,000 से 4,000 होता, तो वो हमारे प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता। हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट से, हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है 2,000 रुपए, अब अगर हम 3,000 4,000 रुपए खर्च कर रहे हैं बच्चों को एक्वायर करने के लिए, then it is not a good model. Okay, we will never be able to make any money. So हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू अपने बच्चों को जा रहे हैं, उनके पास भी एक मौका है कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास कि दे कैन अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। ओके, एंड वी आर आल्सो, हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन 4,000 रुपए आता था वो 400 रुपए आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ B2B2C मॉडल, जिसमें हम लोगों को समझ में आया कि इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं, इट्स वेरी इजी टू lower your CAC, okay, and it is very easy to generate profits in this model. ठीक है, so till now we have learned about
distributor, content creator, and everyone. And the second part is you'll learn about any model. Anyone have any question? किसी को अभी तक कोई question है? Anyone has any question? Are these students of yours, these coaching institutes, all over India or in selected region? No, they are all over India. We have clients everywhere, from south to north to east to west. मतलब Bengal, Tamil Nadu, India, Gujarat, हर जगह पे हमारे clients हैं. So that's the advantage of this internet. Yes, that's the advantage of internet. COVID also helped. COVID ने भी हम लोगों को काफी help किया था. But we were in this space before COVID, 2 years before COVID. हम लोगों ने 2018 में start किया था. So it's the advantage of internet and बच्चों के पास जो freedom है. So that is how it has been very good for us right now. Okay. Now I actually use this R.D. Sharma for my coaching class, which I'm running in Noida, but it's very small at the moment. So this digitization of R.D. Sharma, has it already been done? Yes, ma'am, it is already been done. आप जो R.D. Sharma का जो latest version अभी launch हुआ है, ठीक है? Yes. उसमें देखेंगे आप जो अभी मार्केट में आएगा. I think it has started to go to the teachers. उसमें ना स्कैनर्स होंगे, ठीक है? किताब के ऊपर हर एक चैप्टर में QR कोड्स होंगे. तो जैसे ही आप उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, ओके? अभी आप देखेंगे उसमें एक लैंडिंग पेज है जो दिखा रहा है कि वी आर लॉन्चिंग सून. बट हम लोग अपना पहला वर्जन 7 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं इंटरैक्टिव बुक दे रहे हैं. बच्चा बहुत इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ सकता है. उसको पर्सनलाइज्ड असेसमेंट्स मिलेंगे कि उसको अपनी लर्निंग गैप्स के बेसिस पे उसको खुद को मैथ्स के असेसमेंट्स मिलेंगे. और एक देयर इज अ सेक्शन फॉर डीप डाउन एआई बेस्ड एनालिसिस. उसको पता चलेगा कि वो कहाँ कमजोर है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ उसको वर्क करने की जरूरत है. सो इन अ वे दैट इज हाउ वी आर लॉन्चिंग. So it's good to know कि आप already use कर रहे हैं. So if you will buy a new version of R.D. Sharma, you will see our product there. Right. So I will follow it now. Definitely. The name of the product is 10point.ai. Okay. वो आप देखेंगे बुक में पूरा कवर में सारा लेटर के साथ आपको मिलेगा. 10 point. Okay. Any other question? किसी को अभी फिलहाल? Yes, sir. You are providing course MP and UP. Sorry. Sir, you are providing course and books MP in Madhya Pradesh and UP state. नहीं मैम, हम लोग courses नहीं provide करते. No, हम लोग courses अभी नहीं provide कराते. हम लोग बस application provide कराते हैं. And then currently through R.D. Sharma book हम लोग सीधे जो R.D. Sharma book को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. We don't provide any other courses or anything. Okay, sir. Thank you. But the point is, sir, even after having this R.D. Sharma, they do require our help also. Sorry? Even after they have R.D. Sharma, these students sometimes need our help. Yes, ma'am. Personal tutor. Yes, ma'am. Definitely. So actually, that is what we are trying to do. We are trying to build a very self-help book. Okay? जिसमें बुक क्या है ना, उनसे क्वेश्चन पूछेगी, वो जो आंसर देंगे उस हिसाब से बुक अपने कंटेंट को अडॉप्ट करेगी. We are trying to make it a self-learning book kind of a thing. Okay? And in either case, we'll have a good number of teachers to solve their doubts and everything. कि वो उबर की तरह होता है ना, जैसे हमको कैब मंगानी है तो हमने उबर पे क्लिक मंगाया और सीधे कैब आ गई 5 मिनट में. That is how we will do for the doubt solving too. किसी के बच्चे को डाउट हुआ तो हम, because we already have lots of teachers, we have 10,000 teachers right now. So in case हम लोग will be able to, but in a way हम लोग का aim यही है कि उस इंटरैक्टिव बुक के थ्रू बच्चे को ना मतलब सेल्फ लर्निंग बुक काइंड ऑफ चीज उसे मिल जाए. उसमें वीडियोस भी रहेंगे, इलस्ट्रेशंस भी रहेंगे, ताकि उसको बार बार टीचर्स की जरूरत ना पड़े. टीचर्स की जरूरत सिर्फ क्लासरूम में पड़े, बट जब वो बुक पढ़ रहा हो, he will be or she will be able to understand it herself. Correct. That means your model, you are not going in a linear way while teaching.
But you will be then going back to what the student didn't understand. Yes. Exactly. Yes. So, okay. Okay. Coming back to the last two topics. Now we have understand the distributor concept, business model, and obviously importance of stakeholders in any edtech space. The last one is key matrices. The very important aspect is key matrices. Key matrices means कि हम कोई भी स्टार्टअप अगर कर रहे हैं, एडटेक स्टार्टअप, मेनली एडटेक स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हम क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं किसकी भी लाइफ में, चाहे वो टीचर हो गया, चाहे वो बच्चा हो गया, चाहे वो पेरेंट्स हो गया. ओके, देयर आर सम स्टार्टअप जो टीचर्स के लिए बनते हैं. ओके, वो ये बोलते हैं कि यार मैं टीचर्स की एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा. सो आर दे एबल टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी? देयर आर सम स्टार्टअप जो पेरेंट्स के लिए बनते हैं कि मैं पेरेंट्स को उनके बच्चों का पूरा रियल टाइम एनालिसिस दूंगा, वो सारी चीज दूंगा. और कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जो बच्चों के लिए बनते हैं कि मैं बच्चों के मार्क्स बढ़ाऊंगा. सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, आप कोई भी स्टार्टअप आप करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप is biometric in edtech space. ठीक है, in coaching institutes and everything. Biometric ने क्या किया है कि जब I think lot of coaching institutes and lot of big schools and everything have started biometric attendance in their institutes. उससे क्या हुआ है, बच्चों ने ना स्कूल में कोचिंग में जाना जबरदस्ती शुरू कर दिया है. अटेंडेंस हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक. बायोमेट्रिक के पहले बच्चे बंक कर देते थे, चले जाते थे. तो उस तरीके से सो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द की डिफरेंस मेकर की एंगेजमेंट. कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों के लिए बढ़ाएं, जैसे इफ आई एम बायजूस है, ओके, तो बायजूस कैसे कैलकुलेट करेगी कि यार एक बच्चे का पहले 100 में से 40 मार्क्स आते थे, क्या मेरा प्लेटफॉर्म यूज करके उसके मार्क्स 60 हुए हैं कि नहीं है. ठीक है, दिस इज द की डिफरेंस मेकर. तो जब भी आप एडटेक स्टार्टअप बनाए, जैसा हम लोगों ने जब इंजीनियर में स्टार्ट किया था, हम लोग ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करते थे कि हम लोगों ने 2018 में शुरू किया था कि वो जितनी भी ऑफलाइन एक्टिविटीज होती है, अटेंडेंस हो गया, नोटिस हो गया, फीस हो गया, उसको वो ऑनलाइन करेगा हमारे टीचर. ऑनलाइन से एफिशिएंसी बढ़ती है. तो हम लोग ये कैलकुलेट करते थे कि यार उसने दिन भर में कितनी ऐसी एक्टिविटीज करी है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे करी. ओके, अटेंडेंस वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ले रहा है कि नहीं ले रहा. अगर वो ले रहा है, दैट मींस we have created a difference. हम लोग क्या करते थे, अटेंडेंस जैसे वो देता था, पेरेंट्स को मैसेज भेज देते थे कि आज आपका बच्चा प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लेट है. सो उससे क्या होता था कि एक वी ट्राई टू डू समथिंग कि टीचर जो है उसको एफिशिएंट तरीके से करे. पेरेंट्स के लिए आप एनालिसिस बनाते हैं, बच्चों के लिए सिर्फ एक ही की मैट्रिक्स होता है कि उनके मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े, लर्निंग आउटकम्स. This is what we call a learning outcome. Okay, so as of now, no company, no a good company has able to do it. Okay, किसी भी अच्छी कंपनी ने इतना काम नहीं किया है कि एक बच्चे के 40 मार्क्स आ रहे हो और उनका प्लेटफॉर्म लेके वो 60 से 70 पहुंच जाए. एंड दैट इज द वन की एस्पेक्ट. अगर आप किसी भी स्टेक होल्डर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, then there is no chance that your product will not work. So if you're building a product for anyone, for teacher, for parents, for students, अगर आप उनके जो की मैट्रिक्स में डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, you will not be able to succeed. जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स है, हम लोग कोचिंग को प्लेटफॉर्म देते हैं. हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू उनके बच्चे बढ़ेंगे. आज वो फॉर एग्जांपल 50 बच्चे पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने कुछ प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू उनके 60 से 70 बच्चे हो जाएंगे. So in a way, that's basically 20% का increase. So in a way, what we are doing is we are increasing their revenue. किसी कोचिंग को क्या चाहिए होता है या स्कूल को क्या चाहिए होता है कि वो जितने बच्चे पढ़ा रहा है उससे थोड़े से ज्यादा बढ़ जाए. So we are doing that for us. So in a way, we are creating a good difference for them. स्टूडेंट के लिए जब भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार सिंपल सी चीज है कि बच्चा क्या हमारे हम 2 मैट्रिसेस यूज करते हैं. एक तो एंगेजमेंट, ओके, कि वो हमारे प्रोडक्ट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है. ठीक है. सेकंड होता है लर्निंग आउटकम, कि वो
हमारे प्रोडक्ट के थ्रू अगर पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स में क्या, उसके लर्निंग में कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया, इन दोनों चीजों को मेजर करने का हम लोग तरीका बनाते हैं और हम लोग देखते हैं कि whether we are able to make differences or not. So keep that in your mind whenever you are starting a tech startup or any startup in a way. You have to create the measures to measure the key matrices. आपको ये तरीका ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे जो की मैट्रिसेस होते हैं उनको मेजर कर पाओ और whether you are able to increase or decrease those matrices or not. So this is a very important aspect of any startup, or it's very important in tech startup because अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो गारंटी से बोलती है कि आप अपना बच्चा लेके आओ, उसके 40% मार्क्स आते हैं, मैं 60% करूंगा, उसके पेरेंट्स जो चाहो वो पैसा पे करने के लिए रेडी होंगे. They will not hesitate in it because parents are very obsessed with their marks and everything in India. So that is how these things work. As of now, कुछ कंपनी कर पाई हैं, कुछ कंपनी नहीं कर पाई हैं. Personally, हम लोग भी बहुत ट्राई कर रहे हैं. Whether we'll be able to reach it or not, time will tell. But yeah, the key to build a very good startup is to build very good key matrices and work on it. So as of now, we have talked about these are 4 things that I wanted to talk about today. We have talked about the distributor model. Okay, कि हम लोग को पहले ये डिसाइड करना है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं या फिर रियल एस्टेट, बेसिकली स्कूल, कोचिंग, कुछ भी बनना चाह रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग करते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग वी टॉक्ड अबाउट बिजनेस मॉडल, कि हम लोगों ने सारे मॉडल्स का चैलेंजेस को समझा कि वेदर B2B, B2C और B2B2C. ओके, कि किस किस मॉडल के क्या क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कौन सा मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल है. ठीक है. तो जब भी आप कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड कि अगर आप B2C भी स्टार्ट कर रहे हैं, नो मॉडल इज परफेक्ट. ओके, एवरीवन हैज हिज चैलेंजेस. मैंने बोल दिया बहुत आसानी से कि B2B2C सक्सेसफुल होता हुआ है अभी तक, लेकिन B2B2C बनाने के लिए आपको बिजनेसेस पकड़ने पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट उस लेवल का बनाना पड़ेगा. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ B2B2C मॉडल. ओके, तो कोई भी मॉडल आप बनाएं उसके चैलेंजेस हमेशा याद रखें. B2B के क्या चैलेंजेस हैं, B2C के क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हम लोग उनको कैटर करेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप बेसिकली किसके लिए बना रहे हो. पेरेंट्स के लिए बना रहे हो, टीचर्स के लिए बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो. व्हाट आर द स्टेक होल्डर. जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट टीचर के लिए बनाते हो, ओके, तो उसमें सिर्फ टीचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर. आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो, ओके, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स, टीचर, बच्चा, 3-4 स्टेक होल्डर आ जाते हैं. सबके अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस है. ओके, सो यू हैव टू कैटर दैट. एंड द फोर्थ वन वी टॉक्ड अबाउट इज की मैट्रिसेस. ओके, कि जब भी आपने को कोई भी हम लोग स्टार्टअप के लिए बनाते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंगेजमेंट और लर्निंग आउटकम्स और की डिफरेंस मेकर्स. ठीक है, कि बेसिकली हम लोग को हमारे स्टार्टअप का, हमारी कंपनी का मेजर की मैट्रिसेस क्या है वो समझना पड़ेगा और उन पे हम लोग को काम करना पड़ेगा. एंड इफ वी आर एबल टू मेक द रियल डिफरेंस, देन इट विल बी वेरी hard for people to not use our product. So I think these 4 things are very sufficient and the very key things to keep in mind before and after you start your own venture. So that's it. So I just wanted to talk about these 4 things. Let me know if you guys have any question regarding this or any example or any doubt. I will be happy to clear it. Sir, Hanji. sir, though I am not from EdTech, but this session is really wonderful, and you have mentioned everything, taking a practical aspect. So thank you so much, sir. It was really an amazing session and very insightful. Thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I think so basically टाइम तो 2 घंटे का था, बट
I just wanted to talk about these 4 things. So if anyone has any question, it's fine. Otherwise, Rahul, can we end the session? Haji? Sure. We can, as per requirement, we can close if no questions are there. If any discussion is there, as you were saying, participants can talk. What will be the best way to advertise for this? For advertise for what? In these ed startups. Sorry? For these ed startups, should we advertise only online or offline? Ma'am, actually that completely depends on your product. Okay. ऑफलाइन अब इसमें मतलब डिफरेंस क्या होता है कि आप अगर ऑफलाइन मार्केटिंग करने जाते हो it needs lots of resources and it's very costly. Okay. ऑनलाइन में क्या होता है, आप एक एड चलाते हो, with a single ad you will be able to go to all over India. Okay. ऑफलाइन में क्या होता है कि it needs resources. जनरली मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है अपने मॉडल में या बाकी जगह में, ऑफलाइन मॉडल में यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव आपकी नहीं आती है. ओके. हम लोग अपना एग्जांपल देते हैं. हम लोग जब हम लोगों ने अपना कोचिंग का प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, तो बिफोर कोविड हम लोग पूरा ऑफलाइन जाते थे. हम लोग एक सिटी जाते थे, वहां पे घूमते थे, वहां पे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे सबके नंबर निकालते थे थ्रू एड्स एंड एवरीथिंग, फिर उनको कॉल लगाते थे और उनको क्लोज करते थे. ओके. थ्रू दिस मेथड हम लोग एक सिटी में 3 से 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट कर पाते थे बस. बिकॉज बहुत सारे लोग थे जिनके थ्रू हम पहुंच भी नहीं पाते थे. बट जब कोविड आया, हम लोगों ने ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट किया थ्रू फेसबुक एंड एवरीथिंग. अब हमारे पास एक सिटी में 20-30 लोग हैं. ओके. सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू रीच पीपल थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग रादर देन ऑफलाइन. एंड हमारा पहले एक कस्टमर को एक्वायर करने में 6 से 7 हजार रुपए जाता था हमारा, बिकॉज ऑफलाइन जाने आने का खर्चा और वो सारी चीजें रहती थी. अब थ्रू ऑनलाइन हमारा वही कॉस्ट जो 6,000 रुपए आता था, वो 1200-1300 रुपए आता है. So in a way, online has helped us to reduce our CAC too. Yes. Yeah, so that is how. Sir, I wanted to know that what is the difference between education in India? Are there any loopholes तो बहुत है, and education internationally, because जो हम education follow कर रहे हैं वो बहुत सालों से it's the same. So is there any startup which is different and we are focusing on real values? So I wanted to know that. Yes, ma'am. Actually, इसका बहुत ज़्यादा differences है. Okay. I was actually reading a report yesterday कि अमेरिका में जो डिजिटाइजेशन इंडिया में अब आया है, एक्चुअली पोस्ट कोविड. ओके. वो अमेरिका में 2010-2012 में आ गया था. बाय 2016 अमेरिकन स्कूल्स में कंप्यूटर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो 1:1 था. ओके. अब इंडिया में इतना चेंजेस क्यों नहीं आया? क्योंकि आप अगर थोड़ा फोकस करेंगे, हमारी जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, आई थिंक इट वाज इन 1989 आई थिंक. ओके. उसके बाद अब हम लोगों ने 2020 या 2021 में शायद हम लोगों ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो it took us almost 30 years to actually launch a new education policy, and that is why there is no innovation in schools and everything. But government ने I think by 2025 जब पॉलिसी कंप्लीट तरीके से लॉन्च हो जाएगी, तो हमारा जो डिजिटाइजेशन है, जो AI है, इन सब का यूज स्कूल्स में ज्यादा बेटर तरीके से होने लगेगा. सो बहुत ज्यादा डिफरेंस है अभी इंडिया में. और आप देखेंगे बाहर की कंपनीज, पीपल, स्टूडेंट्स आर मोर अवेयर अबाउट देयर हॉबीज, अवेयर अबाउट देयर पैशन. वहाँ पे लोग 5वीं-6वीं क्लास से कोडिंग करना शुरू कर देते थे. ओके. हम लोग कोचिंग में, मुझे कॉलेज में आके पता चला कि कोडिंग कोई चीज होती है. ओके. सो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस. ओके. बट हाँ, कुछ कंपनीज हमारी इंडिया में आई हैं, जैसे व्हाइट हार्ट जूनियर ने थोड़ा सा whatever it is, बट उन्होंने एक ट्रेंड चेंज किया. आज के टाइम पे लोग 9th और 10th 9-10 साल की एज में भी पीपल स्टार्ट
discovering at least about their passion, people are learning new skills and everything. So बहुत difference है. As of now कोई एक कंपनी को इतना अच्छा नहीं कर रही है कि वो डिफरेंस को कैटर कर पाए. Bits and pieces है, but yeah, I think in the next 3-4 years the difference will will be reduced. Okay. So can you please share your contact details? Yes, ma'am. So Good morning, sir. I am Divya. I have a small question from you. I always wanted to help children who are not, having access to digital education, right? Yes, so, okay. Suppose I have been doing it at a very small level for the ayahs around my house, okay, for the children of their children. But the thing is that they send their children to school तो भेज देते हैं, बट घर पे हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है. और उनके पास वो डिवाइसेस भी नहीं है जो जिससे कि वो ऑनलाइन या यूट्यूब पे जाकर या किसी भी मतलब मोड से उसको वो देख सके. So do you feel, is there any way we can help these children who have no access to digitalization? मैम इसमें बहुत सारे तरीके हैं. आप हेल्प कर सकते हो, बट जैसे आप ने यूज किया डिजिटाइजेशन. ओके, सो डिजिटाइजेशन ना डिवाइसेस के बिना पॉसिबल नहीं होता है. इसमें आप एक मॉडल जो हम लोग कर सकते हैं कि इफ एनीवन इज रियली इनटू इट कि हम लोगों ने ऐसा मॉडल सोचा था. आपने देखा होगा आज के टाइम पे बायजूस स्मार्ट वो आ रहे हैं, स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना. बहुत हर जगह सारे छोटे छोटे शहरों में हर जगह खुल रहे हैं. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर जगह, आगरा, हर जगह मैंने आई हैव सीन एट लॉट ऑफ प्लेसेस. तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक जगह लेते हैं, उस पर बहुत सारे बच्चों को बिठा देते हैं. एक उन्होंने प्रोजेक्टर लगा रखा है. एक टीचर नहीं, आप उसको हैंडलर बोल सकते हो, बिकॉज देयर आर नो टीचर्स इन दोज इंस्टीट्यूट्स. वो लोग क्या करते हैं, उस प्रोजेक्टर पे वीडियोस चलते हैं और एक टीचर उनको ऑपरेट करता रहता है, व्हाटएवर हैंडलर. So what you can do is, you can create a system like that, very cost effective, create a system like that कि ऐसे बच्चे जिनके पास devices नहीं है, you can create a place जहाँ पे वो आके उस सारी चीजों को मतलब cater कर सकें. You just need a laptop, a place, that's it. आप और एक टीचर, आप कोई टीचर कहीं पे भी हो, they can actually teach through their laptop and students will come there. And they will learn whatever they want to learn, because I follow almost the same model only. मैं अपने घर में ही around 8-10 children are there जिनको मैं, जो हमारे आया आसपास रहते हैं उनके बच्चे हैं, उनको मैं अपने घर पे ही पढ़ाती हूँ. और मैंने because I have a space जहाँ पे मैं उनको पढ़ा सकती हूँ, तो मैं उनको उस तरह से हेल्प कर रही हूँ. बट the thing is कि अगर हम एक वाइडर ऑडियंस के बारे में सोचें तो I think this model, what you were saying, is quite workable. It's a very good idea, I believe. And इसको आप कर सकते हो, because आज के टाइम में डिवाइस का रिप्लेसमेंट वही है कि आप फिर एक जगह पे उनको सारे लोगों को इकट्ठा करो और विद अ सिंगल डिवाइस यू विल बी एबल टू टीच देम. बट देन उसमें ये होता है ना कि क्लासेस अलग अलग होती है, वो प्रॉब्लम है. हाँ, वो एक चीज है. बट मैं ये कि हाँ, डिवाइस के बिना फिर उसको क्रिएट करना, एक 24 आवर सिस्टम क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इट्स वेरी very costly for us to create those kind of a system. बट आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, और मतलब और फिर उसमें देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग आगे कैसे कर सकते हैं. बट अगर आपको डिवाइस के बिना करना है, दैट इज वन वे टू डू इट. राइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू. So what is this Khan Academy model in US? मैम एक्चुअली खान एकेडमी मॉडल यूएस क्या वो इंडिया में भी था, वो उन्होंने ज्यादा यूएस बेस्ड कर लिया है. खान एकेडमी वाज खान एकेडमी वाज स्टार्टेड बाय वन पर्सन कॉल्ड सलमान खान. ओके, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू किया था. ओके, उन्होंने सारे टॉपिक्स के मतलब मोस्टली काफी इट टुक हिम वेरी आई थिंक 4-5-6 years to build all the content, but उन्होंने बड़ा अच्छे से वीडियोस बनाए थे, फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराया था उन वीडियोस का. ओके, और बच्चों को जस्ट लाइक यूट्यूब, बट आप उनकी वेबसाइट पे, ठीक है. तो बट
बट अभी मोस्ट रिसेंटली उनका थोड़ा सा इट वाज वेरी यूजफुल। आज से 5 से 6 साल पहले बहुत यूजफुल था वो चीज, ठीक है, बिकॉज यूट्यूब पे बच्चों को अच्छा कंटेंट नहीं मिलता था। बट अब आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, यूट्यूब पे भी आपको बहुत अच्छा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। yes. अगर आप ढंग से ढूंढेंगे तो यूट्यूब पे आप दुनिया का ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है, मतलब कोई 9, Yes, 10 मैथ साइंस कुछ भी, तो आपको तो दैट इज वाई उसकी रेलेवेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। बट अगर हम लोग 2015-2016 की बात करें, जब उतना ज्यादा कंटेंट क्रिएशन हुआ नहीं था एडटेक के हिसाब से, तब इट वाज वेरी रिलेवेंट। उन्होंने क्या किया है कि मतलब उन्होंने यूएस में बहुत ही न्यू एज स्कूल्स खोलने की कोशिश करी है। वो लोग केस स्टडीज के थ्रू बच्चों को टॉपिक पढ़ाते हैं, थोड़ा पैशन और स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे थोड़ा सा न्यू एज स्कूल खोलने की कोशिश करी है। बट इंडिया में अब उनका रेलेवेंसी उतना ज्यादा रहा नहीं है। दे स्टार्टेड विद फ्री कंटेंट, बट क्योंकि अब यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट मिल ही रहा है, एंड ऑब्वियसली आवाज देखोगे आप कहीं भी, अब छोटे से छोटा टीचर भी इट हैज वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो that is why the whole ecosystem about Khan Academy has changed. Okay. Yeah. Sir, please send me contact detail. Okay, contact details. Okay. So my email ID is Pramodit Yes. @ you can connect me on mail through this mail, and if you want to WhatsApp or anything, this is my WhatsApp number 7906784979. Okay. Okay, thank you, sir. ठीक है, I think also we are I think done with the questions. Sure. Thank you, Pramodit. Thank you. Thank you everybody. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. We will again connect at 1:50 p.m. Session will start by 2 p.m. 150. Okay. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. So much.